Good morning, everyone. I hope all of you are good. I was just waiting if आपके बाकी लोग भी join करेंगे. So we'll just wait for 2 more minutes and then start. Okay? Okay, guys, let's get started. So I'll just give you a brief introduction about myself and then we'll go to the topic. कुछ भी है तो आप chat box में लिख सकते हो. Okay? I hope I'm audible. Yes? Am I audible, guys? सुनाई दे रहा है? राहुल सुनाई दे रहा है? ओके ग्रेट. गुलशन, कबीर, प्रीति, रिशु, Sarabjot. Yes, guys, you all have to be active on the chat at least. Okay? चलो शुरू करते हैं. I'll just give you my introduction and then we will see what are we going to do today. Yeah, I hope the screen is visible, guys. Please chat everyone में आप chat type कर दीजिए. Yes, very good. Great. Can you see those thumbs up emoticon over there? आप वो emoticon भी दे सकते हो ताकि मुझे पता चले. Okay? चलो. Anyways, now my name is Neha Challa with a double A, and I am a CA. Okay? So I studied in SRCC and I worked in KPMG. And after working for a brief period, I am into teaching, full-time teaching. मैं CA, CIMA, ACCA mainly ये 3 courses को पढ़ाती हूँ and also CMA India. Okay, so today I am here to cover your ethics chapters. So you have 2 ethics chapters, which is 14 and 15. Okay, so basically at around 3 to 4 classes लगेंगे. When I say 3 to 4 classes, it means about 45 minutes एक क्लास का लगा लो आप. Okay, तो आज हम 14th chapter 14th unit we will start. Okay, we'll finish half of it today and we will do the rest half next week on the Saturday. Okay, so can I have an answer of yes on the chat box, please? Very good. That's great. All right. So basically, we are going to study about ethics. Okay. See, as professionals, there is lot of public interest on your particular profile. Okay, lot of public interest. आप लोगों ने कबीर सिंह मूवी तो देखे होंगे. Yeah, have you all watched कबीर सिंह? कबीर सिंह देखा है? उसमें बताओ क्या शाहिद कपूर जो भी था
Was he ethical when he was operating his patients or when he was doing his duty? क्या वो ethical था? क्या वो सही से behave कर रहा था जो डॉक्टर को वैसे करना चाहिए था? Yes or no? Very good. बाकी लोग पता नहीं है या मूवी नहीं देखा. प्लीज पुट इट फॉर एवरीवन. हाँ, डायरेक्ट मैसेज मत करो, मैं इससे नहीं देख रही हूँ. आई हैव लॉग्ड इन फ्रॉम अदर डिवाइस फ्रॉम वेयर आई एम सीइंग. सो यस, यू कैन सी दैट ही डिड नॉट बिहेव एथिकली. वो एथिकली काम नहीं कर रहा था, वो पी के आता था एंड ही यूज्ड टू ऑपरेट. यू नो व्हाट हैपेंड? ऑफ कोर्स उसने किसी पेशेंट को हार्म तो नहीं किया, बट स्टिल हार्म होने का चांसेस तो थे, राइट? सो एज प्रोफेशनल्स वी शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज हमारे प्रोफेशन के ऊपर हम जो बोलते हैं उसके ऊपर बहुत सारे पब्लिक के डिसीजंस डिपेंड होते हैं. ओके, जस्ट लाइक अगर आपको पता है सत्यम कंपनी का स्कैम है, राइट? एनरॉन का स्कैम है. ये सारे स्कैम्स जो भी थे प्रोफेशनल्स ही किए थे. And because of this particular scams, lot of people got affected. Okay, तो as professionals हमारे ऊपर ये एक you can say it is a mandatory thing कि हमें ethics follow करनी चाहिए. Okay, no matter कि आप business कर रहे हो या profession में कर रहे हो, you have to follow ethics. देखो, अगर एक business person है जो ethics नहीं follow कर रहा है, आप नहीं चाहोगे ना कि वो you go to that person only. You won't go to that person. Suppose you're going to buy milk and you know that there is one there you're going to buy milk. Okay, you're going to this particular person and you know that this person, ये जो बंदा है, he always mixes water with milk. बहुत ज्यादा पानी मिलाता है. तो बताओ, आप इसके पास वापस से जाओगे क्या? Will you go to him? Will you go to him? Yes or no? Will you go to him? हाँ, very good. You will not go to him, right? So that is the reason businesses को भी ethics follow करना पड़ेगा. Okay, if businesses also do not follow ethics, then what will happen? There will be huge losses. There will be huge losses. अभी बैंगलोर में कल को न्यूज में आया था, there was some Godrej company, Godrej, it was constructing a building, it was constructing a luxury apartments. ओके, बट कंस्ट्रक्शन करने से पहले ये लोगों ने एयर पोल्यूशन बोर्ड का परमिशन नहीं लिए. दे डिड नॉट टेक. सो विदाउट टेकिंग दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन. अब कोर्ट ने बोला यू हैव टू डेमोलिश दीज बिल्डिंग्स. सो टेल मी, यू डिडंट डू एन एथिकल बिहेवियर. एक तो आपने लॉ भी नहीं फॉलो किया, यू वर नॉट एथिकल ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट टाइम पीपल विल नॉट ट्रस्ट दिस ब्रांड, they will not come to buy property from you. So that is the reason ethics are very important. Okay, तो ये आपके सिलेबस में 15% का मार्क्स वेटेज है. So please all of you be careful and I will try to explain you everything with examples. तो अगर आपके पास बुक्स है तो बुक के बगल में वो एग्जाम्पल लिख लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम whenever you are studying आपको क्लियरली याद हो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. Okay, so first thing we are going to talk about business ethics. Okay, so I just told you business ethics are very important. Now the point is, what are these ethics? ये क्या है? What are these ethics? Ethics का मतलब कुछ भी नहीं है. There are some things which your parents also tell you, your friends also tell you, which are good or which are right, and there are some actions which are bad and which are wrong. Okay, so those are ethics. Ethics का मतलब है आपको गुड और राइट, बैड और रॉन्ग ये दोनों चीजें बताती है. जो भी गुड एंड राइट है यू शुड डू दैट. इफ यू डू दैट यू विल बी कॉल्ड एज, यू विल बी टर्म्ड एज एथिकल पर्सन. बट अगर बैड और रॉन्ग साइड आप चूज करोगे तो यू विल बी कॉल्ड एज अनएथिकल पर्सन. ओके, नाउ क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसका? Some common examples can be like whatever they have given in your book. Child labor. क्या आप child labor से काम करा सकते हो?
Can you do that? Is it good? Is it right? Yes or no? No, right? तो ये चाइल्ड लेबर जो है वो एथिकली बैड है, इट इज रॉन्ग, तो यू विल बी टर्म्ड एज अनएथिकल पर्सन. ओके. एंड सी, आपके लाइफ में भी पर्सनल चॉइसेस होते हैं. आपको कुछ चीजें सही लगता है बट बाकी लोगों को सही नहीं लगता है, तो क्या आप गलत हो या सोसाइटी गलत है? ये जो चीजें है ना, एथिक्स जो है, आप क्लियरली नहीं लिख सकते हो कि ये ही सही है ये ही गलत है. फॉर एग्जाम्पल, टेल मी समथिंग, इफ आई एम किलिंग अ पर्सन, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? सपोज मैं किसी को मार रही हूँ, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? टेल मी, राइट और रॉन्ग? क्विकली टेल मी, राइट और रॉन्ग? Killing someone, right or wrong? Only Kabir has answered. All of you don't know, rest of you? Good Rishu, good Sarabjot, good Preeti. Good Rahul. Yes. So when I said killing a person, you said it is wrong. But suppose if I kill a terrorist, now tell me, is it correct or wrong? Killing a terrorist, is it correct or wrong? Right. So you can see the answers. Some people are telling yes, it is right. Some people are telling it is wrong. Can you see that? तो एथिक्स जो है हम ये बुक में नहीं लिख सकते हैं कि यही सही है यही गलत है, राइट? कुछ लोगों का थिंकिंग ये बोलता है किसी को भी आप मारो, गलत तो है ही, जैसे कबीर ने बोला, टू रॉन्ग्स डूइंग मेक वन, डोंट मेक वन राइट. ओके, व्हाटएवर. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, people have different opinions about क्या सही है क्या गलत है, different opinions. So that's the reason we cannot write it in books. इसीलिए हम इसको लॉ नहीं बना सकते हैं. अगर मैं लॉ बनाऊंगी, लॉ तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा ना. बट एथिक्स को हम लॉ में इसीलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि कोई भी नहीं बोल सकता है कि क्या एक्चुअली सच में 100% सही है क्या गलत है. ओके. सो देयर आर लॉट ऑफ वेरियस थिंकर्स एंड इस एथिक्स में भी बहुत सारे स्टडीज है, बहुत सारे अप्रोचेस है. हाँ, सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दोस. ओके. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स, हमें कुछ और चीजें भी याद रखना पड़ेगा. ये जो भी एथिक्स है इसको हमें अप्लाई करना है. वी विल हैव टू अप्लाई दैट, राइट? So when you apply what is good and what is wrong, it is called as morality. Okay? What is right and what is wrong को आप apply करोगे तब आप उसको morality बोलते हो. Okay? या ये morality को आप कैसे apply करोगे? See, now you told me that some of you told me, ma'am, killing a terrorist is right. Some of you told me, ma'am, killing terrorist is wrong. Okay? So you are applying this right and wrong, that is called morality. बट आप जो इंडिविजुअल ओपिनियंस दिए थे ना, दैट इज कॉल्ड वर्च्यू. व्हाट इज इट कॉल्ड? वर्च्यू. ओके. तो आप एक इंडिविजुअल हो, एज पर योर राइट एंड रॉन्ग, यू विल अप्लाई, दैट इज कॉल्ड एज मोरालिटी. इज दैट क्लियर एवरीवन? कैन आई हैव सम थम्स अप्स प्लीज? थम्स अप्स नहीं देख पाऊंगी, आप मुझे चैट बॉक्स में यस मैम बोल. यस मैम बोल दो समझ में आए तो. एनी डाउट्स यू हैव, यू कैन पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. ठीक है. हाँ, तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू ethics. Okay, so we spoke about ethics, morality and virtue. Is that clear everyone? Okay. Now अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्टडीज ऑफ एथिक्स. कुछ स्टडीज है, कुछ मेथड्स है, कुछ थिंकर्स है जिन्होंने ये स्टडीज ऑफ एथिक्स को बनाए थे. ओके. सो द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज teleology. Okay. So what is this teleology? ये आपको बताता है कि आप जो भी काम करोगे ना, उसका एंड पर्पस देखो, उसका एंड पर्पस. See, suppose there is a man. All of you will tell me this answer. There is a man. ठीक है. वो क्या करता है, ये जाके कुछ खाना जो है, he steals the food.
he steals the food. Okay, he steals the food because his children are very hungry and इसके पास पैसे नहीं है इन बच्चों को खिलाने के लिए. तो इसीलिए वो क्या करता है, वो जाके खाना he steals it and then he gives it to the children. Okay, जनरली स्टीलिंग जो है वो गलत है, राइट? बट इसका एंड पर्पस क्या है? ही स्टीलिंग इट फॉर अ गुड रीजन. सो इफ द एंड रीजन इज गुड, अगर आपका एंड पर्पस जो है वो सही है, फिर आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो. सो हु टेल्स दैट? थियोलॉजी को जो बिलीव करता है उसके लिए सिर्फ एंड पर्पस से मतलब है. अगर आपका एंड पर्पस सही है उसका मतलब आप सही कर रहे हो. So that is what teleology prescribes. Clear? Can I have some thumbs ups or can I have some yes? Yes, ma'am, got it. Good, Rahul, Preeti, Kabir, Rishu, Sarabjot. Rest of you क्या हो गया? Rest of you को समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया तो मैम वापस रिपीट करेगी. जॉनी एंड गुलशन. Okay, let's go to the next one. So that is about theology. Okay, so please write down ये जो examples हैं. हाँ, next we are going to talk about utilitarianism. सही है ना? Utilitarianism. Yep. So what does this utilitarianism says? You can see utility. What is utility? आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. स्टेक होल्डर्स. आर यू गाइस अवेयर ऑफ हु आर स्टेक होल्डर्स? कैन यू टेल मी यस और नो? इफ यू डू नॉट नो आई विल एक्सप्लेन यू. इफ यू नो वी विल कंटिन्यू. हु आर स्टेक होल्डर्स? ये तो बेसिक चीज है, पता है कि नहीं? यस और नो? All of you know, right? No, Preeti, not shareholders. Shareholders are also one of the part of stakeholders, but stakeholders बहुत wide term है. Okay, Rahul, can you tell me who are stakeholders? Can you message? Can you type it on the chat box? Anybody, quickly! I want all of you to participate. Quickly, stakeholders कौन है? देखो, suppose I am constructing a metro. ठीक है? आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ मेट्रो. अब जब मेट्रो बना रही हूँ, बताओ कुछ लोग तो मरेंगे ना. सम पीपल माइट डाई. सम पीपल माइट डाई. बहुत सारे लोगों के घर डिमोलिश करना पड़ेगा. गवर्नमेंट उनको कॉम्पनसेशन देगी. तो दीज पीपल दे विल गेट सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस मेट्रो. यस और नो? बट मेट्रो बनाने में जो भी रॉन्ग चीजें हम करते हैं, जिसको भी हम हर्ट करते हैं, अगर आप ब्राइटर साइड देखोगे, बहुत सारे लोग दे गेट बेनिफिटेड बाय दिस पर्टिकुलर डिसीजन, राइट? एक दो लोग का जिंदगी तो ठीक है, बट इट इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल ना. ग्रेट नंबर ऑफ पीपल विल गेट बेनिफिटेड बाय इट, राइट? तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलता है? यू आर गोइंग टू सी इज इट गोइंग टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू लॉट ऑफ पीपल. भले एक दो लोगों को, इवन इफ दे आर सफरिंग, बट अगर वो डिसीजन इट इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, देन इट इज करेक्ट. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, रेस्ट ऑफ यू? yes, so please keep writing the examples. हाँ, क्योंकि आपके बुक में इतना क्लियर नहीं है. they have just told you about definitions. Okay, if you write these examples next time when you're studying it, आपको याद आ जाएगा. okay, this is utilitarianism. okay, तो theology में क्या है? सिर्फ अंत का purpose. utilitarianism you're going to see maximum benefit. कितने लोगों को greater benefit अगर मिल रहा है तो वो ठीक है. okay, next one we are going to talk about is deontology. Okay,
deontology. Okay, so here we are going to talk about consequences. Okay, consequences. Here हम consequences को नहीं देखेंगे, करने के बाद क्या होगा वो नहीं देखेंगे. consequences. Okay, you're only going to see कि आप जो भी एक्शन कर रहे हो क्या वो सही है या गलत है. ओके, जैसे अभी आपने बोला मैम, सम ऑफ यू टोल्ड मी मैम मारना तो गलत है, या वो टेररिस्ट हो या नॉर्मल पर्सन हो, इफ यू आर किलिंग समवन इट इज रॉन्ग. you only told me, right? So that is what deontology says, कि हमें अंत में क्या हो रहा है हमें कुछ मतलब नहीं है. अगर आपका एक्शन रॉन्ग है तो रॉन्ग है, स्टोरी रॉन्ग है तो रॉन्ग है, no matter it is for your children or for whoever, we don't care. Is that clear, everyone? Yes, please. Very good. Next, we are going to talk about something which is called as virtue ethics. Okay. This is also again very simple. What is virtue ethics is, suppose मैं बिलीव करती हूँ कि गांधी जी जो है वो सही आदमी है. ओके, तो सपोज मैं एक सिचुएशन में हूँ, सपोज आई एम इन अ सिचुएशन, आई डोंट नो व्हाट टू डू. तो मैं क्या सोचूंगी, अगर मैं गांधी जी होती तो मैं क्या करूंगी, राइट? ओके, सो वॉट एवर गांधी जी डज दैट इज करेक्ट, whatever he thinks is wrong is wrong. Is that clear? So you will think from a point of view of a virtuous person. So for me, Gandhi ji is a virtuous person. So according to him, if I'm doing right, it is right. According to him, if I'm doing wrong, it is wrong. Okay. Here we are comparing our behavior to one particular individual whom we think is a virtuous person. Is that clear? Can I have some yeses, please? So that is about your virtue ethics. So let's go to the next one. Next one is relativism. Okay. So what is this relativism? Relativism बताता है कि कोई सही या गलत नहीं है. मैं कौन हूँ जज करने? आप अपने लाइफ जी रहे हो, आपको जो सही लगता है वो सही है, जो गलत लग रहा है वो गलत है. दैट इज कॉल्ड रिलेटिविज्म. ओके, सो रिलेटिविज्म बताता है कि ऐसा कुछ गलत या सही नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. ओके, yes Sarabjot, I'll repeat it once again, but please concentrate on this first. Okay, once I finish all these studies, then I'll ask you if you have any doubts. I'll repeat it again. Okay, so we are talking about relativism. Relativism का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ भी गलत या सही कोई आपको जज नहीं करेगा. आपको जैसे चाहिए आप वैसे रह सकते हो. Right? So that is about relativism. Next, we are going to talk about justice. Okay. So for justice, we all seek the court's help sometimes. We all seek our parents' help sometimes. अगर suppose your two siblings, आप और आपके भाई हैं, आप दोनों fight कर रहे हो, तो you can seek justice from your parents also, right? So what is this justice? Justice matlab, see, if somebody is coming and grabbing your land, okay, some goon is coming and grabbing your land, तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपको, आपसे जिसने भी ये लेके गए वो आपको वापस दे दे, बिकॉज दैट वाज नॉट अ फेयर थिंग. किसी और का आप ऐसे नहीं ले सकते हो. यस और नो? या जिसको भी you know, suppose I misbehaved with a very old person. मैंने misbehave किया, तो बताओ क्या वो सही है? क्या वो जस्टिस उनको मिलना चाहिए ना?
यस और नो? ओके, तो बेसिकली जस्टिस में भी आपको बहुत सारे टाइप्स हैं, एंड आई एम श्योर जस्टिस इज अ वेरी नॉर्मल वर्ड दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ. आप सबको पता है व्हाट इज जस्टिस. Now in this justice we again have four types. The first one is called social justice. Okay, so social justice means, you know, see, in India when we were long ago, जब independence नहीं आया था या फिर जब इंडिपेंडेंस आया था, देयर वर लॉट ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड बैकवर्ड पीपल, अनटचेबल्स भी थे. इनको बहुत सालों से पीपल हैव यू नो पुट देम डाउन. उनको कुछ भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले थे, उनके लाइफ बहुत बहुत ही खराब था. उनको नॉर्मल पीपल के लेवल तक लाने के लिए दे हैव पुट रिजर्वेशंस, राइट? सो रिजर्वेशन इज नथिंग बट सोशल जस्टिस. उनको हमने जस्टिस नहीं दिया बिफोर इंडिपेंडेंस या वंस इंडिपेंडेंस हैज कम. उनको जस्टिस देने के लिए हमने क्या लगाया? रिजर्वेशन लगाया जॉब्स में या फिर कुछ भी कोर्सेज में, राइट? सो दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस में विल बी टॉकिंग अबाउट जेंडर, आपका व्हाट इज पॉलिटिकल, या आप कौन से रिलीजन फॉलो करते हो, ये सारी चीजें हम नहीं देखेंगे. सबको हम फेयरली ट्रीट करते हैं. दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ओके, आपको पता है इंडिया में, आई हर्ड दैट ऑल ऑफ यू आर वर्किंग पीपल. इज इट राइट? ऑल ऑफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, दैट्स व्हाट आई हर्ड. यस और नो? तो आप सबको पता हो इंडिया का इनकम टैक्स सिस्टम पता होगा. इनकम टैक्स, राइट? जो ज्यादा कमाता है उसके लिए एंड जो लो कमाता है उसके लिए सेम इनकम टैक्स होता है या डिफरेंट होता है? सेम होता है या डिफरेंट होता है? गुड कबीर, राहुल, सरबजोत, रेस्ट ऑफ यू डोंट यू नो? गुड जॉनी, प्रीति, वेरी गुड. ओके, सो यू नो दैट जो ज्यादा कमाता है उससे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है, एंड जो कम कमाता है उससे या तो नहीं लेती है या तो इनसे तो कम लेती है, राइट? सो व्हाई आर वी डूइंग दैट? वी आर डूइंग दैट बिकॉज whoever is earning a lot, that person has to give more tax, ताकि ये जो पैसे है ये जिनको नहीं मिला है उनको गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, राइट? एंड देर इज अ मूवी जिसमें अजय देवगन एंड इलियाना है, बादशाह, आई थिंक. हैव यू गाइस वॉच्ड इट? हैव यू गाइस वॉच्ड इट? नो नो नो. रिशु ने देखा. ओके, यू गाइस कैन वॉच. हाँ, उसमें क्या है कि इंडिपेंडेंस के टाइम से सम पीपल वर हैविंग लॉट ऑफ एसेट्स. उस एसेट्स को क्या दे हैव टोल्ड इज दे हैव टू गिव बैक दोज एसेट्स. एक लिमिट है, एक आदमी के पास उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. बिकॉज हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेस है ना. जो एक पर्सन के पास ज्यादा होता है, सो व्हाट हैपेंस टू अदर्स, पुअर पीपल. आप लोगों ने ये मूवी देखा, शिवाजी मूवी देखा? शिवाजी, जिसमें रजनीकांत है. हाँ, उसमें आपको याद है रजनीकांत बोलता है, सो द richer people are getting richer and poorer people are getting poorer, right? So as justice, सबके पास एक ही टाइप ऑफ एसेट्स होना चाहिए. दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टॉक्स अबाउट. ओके, दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टॉक्स अबाउट. नेक्स्ट वी हैव इज restoration justice. Okay, just now I told you that Gunda, what has he done? He has taken a farmer's land. फार्मर का लैंड छीन के गया वो, तो उसको वो वापस वो लैंड मिलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड रिस्टोरेटिव जस्टिस. ओके, नेक्स्ट आपका रेट्रिब्यूटिव जस्टिस. ओके,
सो यू नो रिसेंटली वो निर्भया के केस में जो भी रेपिस्ट थे उनको क्या पनिशमेंट मिला? क्या पनिशमेंट मिला बताओ? यस, गुड राहुल. सो दे वर हैंग टू डेथ. So that is called retributive justice. मतलब अगर आपने गलत किया तो आपको पनिश करना चाहिए. Okay? So yes, anything that you want me to repeat in any of these red color things, let me know. For Sarabjot, I will repeat utilitarianism. Anything else? Others? No? Okay. Sarabjot, utilitarianism का मतलब है मैक्सिमम अगर आप एक डिसीजन ले रहे हो उससे बहुत सारे लोग को अच्छा होगा, देन इट इज अ गुड थिंग. जैसे आप शिवाजी मूवी में देख सकते हो, वो करप्शन करता है. ही कीप्स गिविंग ब्राइब्स. ओके, ही इज गिविंग ब्राइब्स सो दैट बहुत सारे लोग उससे कुछ गुड उनको मिले. दे गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट, राइट? सो यूटिलिटेरियनिज्म बोलता है कि अगर बहुत सारे लोगों की खुशी के लिए आप कुछ गलत चीज करते हो, then also it is a right thing. It is not a wrong thing. That is what utilitarianism tells. Okay, I hope it is good. I hope you understood. Yes, people. Anji. Very good. Chalo, let's go ahead. Yeah? Huh. Now we are going to talk about some normal terms. Normal terms that we all use in our daily lives. Yeah. So we have fairness. Fairness. Whenever you're treating anybody, you should be fair to them. You should not judge them based on their color, based on their gender, or anything. That is called fairness. Okay. Then integrity. Integrity means whatever actions you're doing, whatever things you're doing, they all should be ethical. They all should be ethical. Following ethics, following laws, all that is called integrity. Okay. Next thing you have is due diligence. Due diligence. Due diligence means, in simple words, I'll tell you so that you will remember. Suppose I'm going and प्रीति है ना आपके क्लास में? प्रीति है तो प्रीति का एक बिजनेस है. ओके प्रीति का एक बिजनेस है. मैं प्रीति के बिजनेस को खरीदना चाहूंगी. आई वॉन्ट टू बाई प्रीति's बिजनेस. बिफोर बाइंग प्रीति's बिजनेस, आई वुड ऑब्वियसली चेक कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं. डिड शी हैंडल द बिजनेस प्रॉपरली? हाउ इज प्रीति? हाउ इज द फ्यूचर गोइंग टू बी विद दैट बिजनेस? मैं पूरा बैकग्राउंड चेक तो करूंगी ना. दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस. ओके. Okay. Next we have is fiduciary responsibility. Fiduciary responsibility. What is fiduciary responsibility? Is nothing but some relations which are dependent on trust. Okay. जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट. पेशेंट डॉक्टर को ट्रस्ट करता है, तो दैट इज अ फिड्यूजरी रिलेशनशिप. ओके. लॉयर एंड क्लाइंट. द क्लाइंट विल ऑलवेज ट्रस्ट द लॉयर. That is called fiduciary relationship. So whenever you have such relationship, doctor and lawyers or whoever is the person, whoever is having this fiduciary relationship, should act in the best interest of their patient or the client. Is that clear, everyone? That is about fiduciary responsibility. Okay. आगे चले. Very good. Now we are going to talk about something which is called as IMA statement of ethical professional practice. ठीक है, ये बहुत ही important है for your exam. Okay. So here what are we going to talk about is, आपके IMA institute जो भी है, they have 4 principles. Okay, 4 principles. ये क्या क्या 4 principles है? Again we all know about what are these. एक तो you know what is honesty.
You know what is fairness? Okay, we just studied about fairness anyways. Next one we have is objectivity. Objectivity means no bias. No bias. Okay. Suppose my son is there. I should not protect my son. I should treat everybody equally. That is called objectivity. And next one is called responsibility. Okay. Responsibility. So whatever role you're playing, you should always take responsibility for it. So these are the four principles that IMA suggests. Okay. इसके साथ साथ you have other four specific standards. Okay. You have other four specific standards. Okay. So now what are these four specific standards is we have competence, confidentiality, integrity, and credibility. Okay. इसमें से integrity we have already finished. So I'm going to tell you more about competence, confidentiality, and credibility. Okay. And see, कभी कभी क्या होता है ना, आप ये ethics किसी ना किसी रीजन के वजह से फॉलो नहीं कर पाते हो. आपको समझ नहीं आता क्या सही है या क्या गलत है. आप नहीं सॉल्व कर पाते हो. ठीक है. यस. तो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में हो, आप IMA हेल्पलाइन नंबर को कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो वॉट एवर इज द नंबर, दिस इज द नंबर. यस गाइस? या? So as the members of the institute, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे. ओके. अब देखो, कभी कभी आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे. कॉन्फ्लिक्ट्स. सो व्हेनेवर यू गेट दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, यू विल हैव टू. देखो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? झगड़ा. जनरली अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखोगे, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स फाइट. सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट फाइट. नो, फाइट को सॉल्व तो करना पड़ेगा ना. राइट. तो ऐसा ही आप जब CMA बनेंगे, आप कभी कभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ सकते हैं. सो व्हेनेवर यू कम इनटू सच कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको वो चीजें सॉल्व करने पड़ेंगे. ओके. अब मैम, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जैसे देखो, आप सबको ये पता है ऑडिटर. डू यू गाइस नो हु इज एन ऑडिटर एंड वो क्या करता है? आपको पता है? यस और नो? फटाफट बताओ. You guys know who is an auditor? Okay, I only got yes from 3 people. Put it on the everyone message because I'm not seeing it over here. Okay, so many people have messaged. Yes or no? Huh. So you know who is an auditor, right? I don't know if you know it because I've never taught CMA US. तो मुझे नहीं पता आपके कोर्स में ऑडिटर के बारे में है कि नहीं. था क्या? ऑडिटर के बारे में था? आपके कोर्स में था? फाइनल स्टैट ऑडिट, फिनेंशियल स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपके कोर्स में था या नहीं था? फटाफट बताओ यार. नहीं था. ओके, वेरी गुड. तो नहीं था तो मैं आपको बता दूंगी ये ऑडिटर कौन है. देखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, व्हाट आर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो पता है. व्हाट आर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स? व्हाट आर दे? बताओ बताओ, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होते हैं? वेरी गुड. Statement of financial position, statement of profit and loss, statement of cash flow, and then notes and disclosures, right? ये सारे financial statements का बनाने का काम board of directors के है, right? But company के owners कौन है? Company के owners. Who are owners of the company? Quickly बताओ.
Who are the owners of the company? Very good. Shareholders. Okay, shareholders are the owners of the company. But company के financial statements तो board of directors बनाते हैं. तो हमें क्या पता कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है सही बनाए कि नहीं बनाए, हमें कैसे पता? तो हम बाहर से किसी आदमी को बुलाएंगे, बाहर से, जिससे हमारी कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है. बाहर के आदमी को बुलाएंगे, फिर बोलेंगे भैया आप प्लीज ये चेक कर लो और हमें बता दो कि ये लोग सही बनाए कि नहीं. ओके, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एन ऑडिटर. ओके, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एन ऑडिटर. ना मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी. I am the shareholder. My name is Sneha, right? I'm the shareholder. Okay, I'm the shareholder. And you know, I just told you I'm a CA also. Auditor तो CA बन सकता है, तो मैं ऑडिटर भी बन सकती हूँ. सपोज अगर मैं ही ऑडिटर हूँ, मैं अपने काम सही से कर पाऊंगी कि नहीं? मैं अपनी काम सही से कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? कबीर says yes, प्रीति says no, राहुल says no. See guys, एक बात ध्यान रखो, अगर प्रॉफिट हाई है तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हाई जाता है. अगर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हाई गया तो यहाँ एज अ शेयर होल्डर मुझे प्रॉफिट मिलेगी, राइट? अगर एज एन ऑडिटर मैं बोलूंगी कि इन लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं दिखाए, तो क्या होता है? तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर नीचे जाता है. अगर नीचे गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, राइट? राइट, समझ में आया? तो अगर मैं ही ऑडिटर बनूंगी, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, मैं कभी नहीं बोलूंगी. तो बताओ, क्या मैं अपने काम ठीक से कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, you know that whenever doctor is operating his own children or his own wife or husband, वो ठीक से नहीं कर पाते. Yes or no? That is because they have conflict of interest. That is because they have conflict of interest. Kabir, first thing, I have conflict of interest now. So I should not become the auditor. मुझे नहीं बनना है. I should not. Okay, if you have a conflict, आपको ये चीज को इग्नोर करना पड़ेगा. मुझे नहीं, I should not become the auditor. Suppose I want to become the auditor, फिर मुझे ये शेयर्स बेचना पड़ेगा. Is that clear? तो कभी कभी आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में पड़ोगे. सपोज मैं जज हूँ, ओके, जो केस मैं ले रही हूँ, इट इज अबाउट माई सन हैज मर्डर्ड समवन. अब बताओ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ना? अगर मैं जजमेंट दूंगी कि नो, माई सन इज इनोसेंट, देन पीपल विल टेल दैट यू आर प्रोटेक्टिंग योर सन. दैट इज नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इज दैट क्लियर? यस, या. सो कभी कभी आपको भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चीजें हो सकते हैं आपके प्रोफेशन में. तो जब भी ऐसे चीजें हैं तो आपको ये चीजें सॉल्व करना पड़ेगा. लाइक सपोज इफ आई वांट टू बिकम द ऑडिटर, आई विल हैव टू सेल दीज शेयर्स. दिस इज हाउ आई सॉल्व इट. सपोज मैं शेयर सेल नहीं करना चाहूंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर नहीं बनना पड़ेगा. नहीं बनना है. दैट इज हाउ यू शुड सॉल्व. ओके, क्लियर? So they have just given you some examples in your course. You can just have a look about it. Okay. So quickly we will do these 4 things and then we'll wrap up for today. Okay. First thing we are going to talk about is competence. See, you're learning lot of skills. आप skills सीख रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सीख रहे हो, नॉलेज आपको मिल रहा है, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हो. उसके बाद ही तो आप CMA US बनेंगे. तो आप जो भी स्किल्स एंड नॉलेज आप यूज कर रहे हो, यू विल जो भी आपने गेन किया है इस स्टडी के वजह से, आप ये काम में भी यूज करोगे. ओके, या नॉट लाइक कबीर सिंह, वॉट एवर यू हैव स्टडीड यू विल प्रैक्टिकली यूज इट in order to bring good laurels to your institute.
not your coaching institute, your CMA institute. Next, we are going to talk about confidentiality. Okay, as cost management accountants, आपके पास कंपनी के बहुत सारे इंटरनल इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकता है. इंटरनल इंफॉर्मेशन. ओके, सपोज मेरे पास मेरे क्लाइंट से ए एंड बी, कंपनी ए एंड बी. ओके, कंपनी के रिकॉर्ड्स मेरे पास है, ए रिकॉर्ड्स मेरे पास है, बी के रिकॉर्ड्स भी मेरे पास है. ये दोनों कॉम्पिटिटर्स है. लेट्स टेक दिस इज कोक एंड दिस इज पेप्सी. दोनों की इंटरनल इंफॉर्मेशन मेरे पास है. एंड सपोज आई लीक पेप्सीज इंफॉर्मेशन टू कोक. बताओ, टेल मी, इज इट फेयर फॉर बी? इज इट फेयर? नो. सो एज अ प्रोफेशनल, whenever I get any information, मुझे उसको confidentially रखना पड़ेगा. I should not disclose anybody's information without taking their permission. Okay, clear? Yes. Next, we already spoke about what is integrity. So we will come to credibility. Okay, credibility का मतलब है जो भी आप काम कर रहे हो, you should do it fairly. Fair होना चाहिए आपको. You should be objectivity. ये objectivity, fairness, honesty, responsibility, ये सारी चीजें आपको फॉलो करना है. See, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, then you will be open ना. आपको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, right? Only when you do something wrong, that is when you will hide something. Yeah, credibility का मतलब है communication. Communication. Okay, whatever you're doing, whatever your decisions are, you need to communicate. Okay, unless confidential चीजें आप communicate नहीं कर सकते हो, but बाकी चीजें अगर आपको communicate करना है तो आपको openly communicate करना है. That is about credibility. Okay, can I have some thumbs ups? Very good. Now, one more thing is, I told you that there could be some ethical issues. Ethical issues कुछ हो सकते हैं. Ethical issues. Okay. जैसे for example, आपके class में there is a person called Rishu ना, Rishu. What Rishu did? He came to me and he told me, ma'am, if you tell there is something wrong in this financial statements, suppose मैं auditor हूँ, he told me, ma'am, if you tell that there is something wrong in this financial statements, I'll kill you. I'll kill you. बताओ, क्या मैं तो डर जाऊंगी ना रिशु से, और मैं गलत रिपोर्ट देने लगूंगी. Yes or no? Yes. So whenever you have such ethical issues, आप क्या करोगे? ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है. नो मैटर इन योर कोर्स, सारे कोर्सेज में ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है. तो आपको कैसे, हाउ विल यू रिजॉल्व इट? ये कैसे रिजॉल्व कर सकते हो? अगर आपके पास साथ कुछ एथिकल इश्यूज है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए? ओके, आप आपके क्लासमेट या फ्रेंड से पहले बात करते हो ना. जनरली आपके लाइफ में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप आपके फ्रेंड के साथ बात करोगे ना. वैसा ही आप किसी और मेंबर से बात करोगे जो भी सीएमए से रिलेटेड है, सीएमए का मेंबर है. ओके, या आपके सुपरवाइजर को बताओगे. आप तो आपके टीचर को बताओगे ना. अगर आपके फ्रेंड सॉल्व नहीं कर रहा है तो आपके टीचर को बताओगे. तो यहाँ पे वर्क कल्चर में आप आपके जो भी ऊपर है आपसे, लाइक सुपरवाइजर और मैनेजर, यू विल टेल इट टू देम. ओके, क्लियर? उसके बाद भी सॉल्व नहीं होता, तो you know that I have just given you the number, you will call to this number and they will help you. इसके बाद भी आपको सॉल्व नहीं हो रहा, then you can take legal assistance. लीगल कोर्ट पे जा सकते हो या लीगली लॉयर से पूछ सकते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. So those people will guide you. Okay, so this is very very important. First क्या करोगे आप? You will discuss with another member. Okay, next, or else you will discuss it with the supervisor. वो भी नहीं होता, then you will call upon the number. वो भी नहीं होता, आप legal help लोगे. Okay, right everyone? You want this notes?
Yes, guys. Yeah, I'll try to share this. So that is about today.